आप सब आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के वेबिनार में हमने अपना टॉपिक रखा है जो 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 28 तारीख और 29 तारीख जून को कंक्लूड हुई है चंडीगढ़ में। उसमें जो निर्णय लिए गए, जो फैसले करे गए, जो रिकमेंडेशन करी गई, उसके बेस पर आज हमने मीटिंग रखी है। और आज ही 6 नोटिफिकेशन भी आ गए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 9 से लेकर नंबर 14 तक, जो कि 5 जुलाई के हैं, आज पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। आज हम जो भी कवरेज करेंगे उन नोटिफिकेशंस को लेते हुए कवरेज करेंगे। आज की मीटिंग को हम पूरी जीएसटी काउंसिल मीटिंग डिस्कशन करेंगे और हमारे पास जितने भी स्पीकर्स हैं, 2-2, 3-3, 3-4 हेड लेकर के सभी करेंगे और इनिशिएट करेंगे आज की प्रोसीडिंग को हमारे मेंबर सीए हिमांशु सिंघल जी। सीए हिमांशु सिंघल जी, प्लीज नाउ ओवर टू यू फॉर द प्रोसीडिंग। हिमांशु जी प्लीज। Good afternoon, everyone. First of all, thanks to Star Group for this opportunity. सर, अब तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग की रिकमेंडेशन को मीटिंग ना कह के लॉ कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, because already we have received the 6 notifications today and literally said कि ये जो notifications हैं सर, ये सच में एक तहलका है जीएसटी के अंदर। जो अभी जो रूल्स अमेंड हो रहे हैं, जो डिपार्टमेंट की एक मैं कहूँ जो मनमानी चल रही है, जो उसका प्रेशर चल रहा है उसको लेके, बट हाँ कुछ उसको लेके एसएससी को रिलीफ है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे बहुत हार्श प्रोविजंस भी रखे गए हैं इस नोटिफिकेशंस के अंदर। तो सर मैं इस जीएसटी, सॉरी मेरे पास पीपीटी में रेडी नहीं कर पाया, मैं ऐसे ही इसको नरेट करूंगा सर। सर मैं 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो 28 एंड 29 ऑफ जून 2022 को चंडीगढ़ कंक्लूड हुई, उसमें बहुत सारे रेट्स चेंज हुए। रेट्स की जो इफेक्टिव डेट्स है वो 18th ऑफ जुलाई। Himanshu ji, I think we have lost you. Himanshu ji, नेटवर्किंग प्रॉब्लम। I Gaurav bhai, think there seems to be some technical issue at his end. प्रेस रिलीज में Yeah, okay. I think he's back. Himanshu ji, are you there? गौरव जी फिर आप आगे बढ़ा दो। ठीक है. So to take the meeting forward, I think there are a lot of changes which we have seen in the press release, which are some of which are announced by the government. Some of them will be announced by the government. Some of the major changes which we will focus today will be in respect of exporters, will be in respect of e-commerce companies, will be in respect of certain rates, specifically job workers, contractors, government contractors. वहां पर कुछ major changes आए. So we will be taking them one by one, and I will not transgress into the area of Himanshu ji. Let him come back. He will brief. Sir, I'm आगे आगे हिमांशु जी आगे। I don't know what's happened. Zoom meeting has automatically shut down from my system. Now I'm coming back. No problem, sir. Sir, cuts I and think you were speaking about something about GST authorities. So sir, better रहेगा कि अब authorities के बारे में आप ना बोलें. If you want the meeting to continue very smoothly. I'm not talking about authorities. I'm just telling कि कुछ ऐसी हैं जो harsh provision है, कुछ ऐसे हैं जो liberal कर रहे हैं provisions को. That was on a lighter note, Himanshu bhai. कहने का point सिर्फ इतना है. Let's continue the meeting. Would request if you can brief everyone on the key changes, and then specific changes will be taken by the respective speaker. So there are some changes regarding the rate of taxes, just like job work in relation to manufacture of clay bricks. सर जैसा अभी ब्रिक्स के रिगार्डिंग जो रेट्स चेंज हुए थे फ्रॉम 1 अप्रैल, तो उसके रिगार्डिंग जो जॉब वर्क्स हैं क्ले ब्रिक्स के, उनकी भी रेट चेंज हो गई हैं. कट एंड डायमंड पॉलिश जो है उसकी रेट्स चेंज हुई. तो देयर आर सो मेनी आइटम्स इन फॉर विच द रेट ऑफ जीएसटी हैज बीन चेंज,
and the effective date will be the date when the notification will come, but in the press release it says that 18th of July. So CTP plant. I am just sorry, I am interrupting in between, but I'm adding to what Himanshu ji has just said. अभी rate changes नहीं आए. आज भी जो notifications issue हुए थे dated 5th of July, which are now available in the public domain, उसमें rate changes वाले notifications are not there. So my dear friends, जैसे हिमांशु जी ने कहा, rate change को please note करिए, वो अभी notifications आने हैं, and the possible date which is mentioned in the press release is 18th of July. Sorry, Himanshu ji, please. नहीं भैया, thank you. रूम रेंट के ऊपर जो हमारे थे 1000 रुपीज से नीचे जो होटल अकोमोडेशंस थे वो एग्जेम्प्ट थे अभी तक, उसके रेट्स चेंज होने हैं जो प्रेस रिलीज के अंदर है. जो सर सबसे बड़ा हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल्स के रूम रेंट होते थे, रूम्स होते थे सर, उसके ऊपर कोई भी वो नहीं होती थी, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता था. नाउ दे आर कम इनटू द एम्बिट ऑफ जीएसटी राइट नाउ above the rent of 5,000. So these are the changes in the rates. अगर मैं आगे बात करूं तो सर सबसे पहले एक जो मैं सर गौरव भैया इसमें एक बात कहना चाहूंगा, जो एक चेंजेस आया है ट्रेड फैसिलिटेशन का, ई कॉमर्स का, सर उसके ऊपर जो ये चेंज है सर मैं सुनना चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर जो चेंजेस आया है ये ठीक है एक लिबरल कर रहा है, बट उतना लिबरल नहीं कर रहा है जितनी एक मार्केट की डिमांड थी. प्रैक्टिकली इट इज नॉट यूजफुल फॉर द एसएससी एज आई कंसर्न. लेट्स जो स्पेसिफिक टॉपिक है ई कॉमर्स का, वहां एक बार देखेंगे इसमें क्या बेनिफिट्स और वो हैं. सर सेकंड थिंग, जो हमारे आईटीसी के जो 89.5 के जो फॉर्मुलेशन थी रिफंड्स के, सर वो चेंज हो चुके हैं इसके अंदर. इवन जो मेरा सेक्शन 110 एंड 111 है सर, उसकी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स जो मेरी बजट में कही गई है सर, उसकी भी अमेंडमेंट आज आ चुकी है नोटिफिकेशन में, बट प्रेस रिलीज के अंदर उसको भी रिकमेंड किया गया था. जो कि बात कर रहा था जो हम आईटीसी यूज करते हैं उसकी अवेल्ड एंड यूटिलाइज, अभी तक सिर्फ जो अवेल कर रहे थे उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही थी, बट नाउ सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 स्पेसिफिकली चेंज एंड इट सेज अवेल्ड एंड यूटिलाइज. तो आज का जो नोटिफिकेशन है बड़ा प्यारा नोटिफिकेशन है. उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जो एक्सप्लेनेशन दी है उसमें यहाँ तक भी एक्सप्लेनेशन दे दी उन्होंने कि कब हम उसको यूटिलाइज्ड मानेंगे और किस डेट से हम उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे. सर जीएसटीआर 4, सर बहुत ज्यादा दिक्कत सब लोगों की जो आ रही थी जीएसटीआर 4 कंपोजिशन स्कीम्स की रिटर्न्स को लेके कि वो नहीं जा रही थी, उसमें एरर आ रही थी. तो जीएसटीआर 4 एंड सीएमपी 08 सर दोनों की जो डेडलाइंस है रिटर्न्स की, दैट हैज बीन एक्सटेंडेड राइट नाउ. जो एनुअल रिटर्न है उसकी 28th of July एंड जो क्वार्टरली रिटर्न्स है अप्रैल टू जून उसकी एक्सटेंड करके 31st of July जो है वो डेट कर दी गई है. सर वन मोर, जो जैसा कि अभी तक चल रहा है फर्स्ट ईयर सिर्फ 17-18 छोड़ के 18, 19, 19, 20 एंड 2021 सर तीनों सालों के लिए जो 9 एंड 9C, सर 9 के लिए बिलो 2 करोड़ की जो लिमिट थी सर उसके लिए 9 को मैंडेटरी नहीं रखा था. द सेम अमेंडमेंट वाज रिकमेंडेड इन जीएसटी काउंसिल मीटिंग एंड द नोटिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीइंग रिलीज्ड टुडे इन द पब्लिक डोमेन फॉर द सेम. सर 43 जो हमारे स्क्रिप्ट सेल होती थी दैट वाज एग्जेम्प्ट नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी, बट अगर हम बात देखें जो 43 की 42 एंड 43 की रिवर्सल के लिए, तो आज हम सब ने ऑडिट्स कराए हैं. उसमें जो स्क्रिप्ट सेल की मेरी जो इनकम होती थी फ्रेंड्स, उसको डिपार्टमेंट एग्जेम्प्ट सेल कह के और उसके ऊपर रिवर्सल की बात करता था. नाउ द एक्सप्लेनेशन कम टू 43(1) that scrip sale is not included in the exempted turnover. That means 42 and 43 की जो रिवर्सल होनी है वो इसके ऊपर नहीं होगी. सर ये चीजें थी. इसके साथ जो मेरा 3B की सर एक और अभी 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो एक बहुत अच्छा इन्होंने मैं कहूँगा मीठी गोली दी है सर, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो जीएसटीआर 3B है उसको अमेंड करने के लिए हम पब्लिक डोमेन में
सर रिकमेंडेशन डालेंगे, उनकी जो सजेशंस है वो लेंगे और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि 3B जो है वो अमेंड होगी, अमेंडमेंट उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स जिसमें सजेशन ले रहे हैं, आई थिंक इट विल नॉट हैपन इन कमिंग फ्यूचर। देखते हैं इसके ऊपर क्या डिसीजंस लेती है गवर्नमेंट, बट यस दिस इज अ रिकमेंडेशन। एक दिमाग में आया तो सही कि 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर की 3B को भी हमें अमेंड की रिक्वायरमेंट है। सर वन मोर थिंग, द मेजर अमेंडमेंट लिमिटेशन पीरियड। सर सेक्शन 73 जो कि मैं बात कर रहा था, जो हार्श प्रोविजन की मैंने बात कही, सेक्शन 73 के अंदर जो लिमिटेशन पीरियड है फ्रॉम 1 मार्च 2020 टू 28 फरवरी 2022। सर इस पीरियड को एक्सक्लूड करने की जो बात कह रहे हैं, यस इट इज गुड फॉर द असेसी, क्योंकि उसमें रिफंड के लिए भी इस पीरियड को एक्सक्लूड किया है सेक्शन 54 के लिए, बट इट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फॉर सेक्शन 7310। एंड वन मोर नोटिफिकेशन हैज कम टुडे कि 7310 के अंदर अगर जो मेरा एरनसली रिफंड है सर, उसके लिए भी इस पीरियड को हटा दिया। एंड जो 7310 है उसके अंदर जो टाइम लिमिट है सर वो क्या है सेक्शन 7310 के अंदर, दैट इज 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। सर अगर मैं 1718 की बात करूं, 1718 की मेरी लास्ट डेट क्या थी, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या थी सर, दैट इज 31 जनवरी 2020 जो लास्ट डेट थी सर उसके अंदर। सर वहां से अगर हम देखें 3 साल, तो मेरे 3 साल होते हैं 31 जनवरी 2023। यहां तक डिपार्टमेंट मुझे नोटिस दे सकता है सेक्शन 7310 के अंदर, बट नाउ दिस डेट हैज ऑलरेडी बीन टुडे हैज एक्सटेंडेड टू 30th of September 2023. So there is 2 amendment today regarding 7310. फर्स्ट वन की डेडलाइन को 30th सितंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दी। सेकंड, एक स्पेसिफिक जो इन्होंने अमेंडमेंट दिया एर्नसली रिफंड के रिगार्डिंग, सर उसके अंदर वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर रहे हैं। दैट मींस उसके अंदर अगर मैं देखूं तो रिफंड के केस के अंदर सर जो मेरा टाइम पीरियड है सर वो 3 ईयर से बढ़ के 5 साल चला गया एर्नसली रिफंड के अंदर, क्योंकि 2 साल का मेरा टाइम पीरियड था, 3 साल का टाइम पीरियड था सेक्शन 7310 के अंदर, और जो 2 साल लिमिटेशन पीरियड इन्होंने एक्सक्लूड किया है सर उससे मेरा 5 साल बढ़ गया। So now the specific notification and area will be covered by different speakers. Over to you, Suresh. This is the total brief of 47th GST Council meeting. थैंक यू हिमांशु जी। जैसा कि हमने आज के प्रोग्राम को रखा है कि हम पूरी इस लॉ में जितने चेंजेस आए हैं सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं गौरव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने पॉइंट रखें, इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, इम्पैक्ट ऑन टैक्सिंग स्टैट्यूट ऑफ टैक्सेबल कमोडिटीज। इस पर गौरव जी से रिक्वेस्ट करूंगा। गौरव जी प्लीज। थैंक यू सुरेश जी। फ्रेंड्स, जैसे सुरेश जी ने कहा, इन रिलेशन टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, द रिलीफ which government contractors had been enjoying in terms of lower rate of tax, that privilege, that relief has been sort of taken off, and the government has given the rationalizing of the inverted duty structure as the reason for doing so, meaning thereby अभी तक जो हमारे सामने रेट स्ट्रक्चर आ रहा था उसमें जहां जहां पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आया, गवर्नमेंट ने कहा अब हम चाहते हैं कि वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ना रहे, और इसलिए जहां जहां पे रेट्स आउटपुट के कम है कंपेयर टू इनपुट, वी विल डू वन थिंग, वी विल नाउ इंक्रीज द रेट ऑफ आउटपुट इन सच पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, so that the person who is supplying those goods or services is not in a situation, number one, of taking refund, number two, of accumulation of input tax credit if he is not able to take those particular refund. And in the same spirit, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की जो पोजीशनिंग है, जो रेट चेंज है, वो प्रपोज करी गई है फॉर इंक्रीज फ्रॉम 12% टू 18%. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इसमें दो चीजें जो बहुत अहम है,
क्या ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पे एप्लीकेबल होगा या जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन पे ही एप्लीकेबल होगा? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स टू एवरीबॉडीज माइंड. एंड नंबर 2, 18th ऑफ जुलाई से जब ये रेट्स इफेक्टिव होंगे तो क्या ये सभी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को उस दिन से एप्लीकेबल हो जाएंगे? व्हाई एम आई सेइंग सो? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का जो बिजनेस है वो बहुत एक यूनिक पैटर्न पे चलता है. वो लोग अपनी पूरी सप्लाई कर देते हैं, फिर एक मेजरमेंट होती है, अप्रूवल होती है. मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ. वंस इट इज अप्रूव्ड, then they raise the invoice, and many of the contractors will also raise the invoice in the format required by the government units or government departments. So वो कभी भी as per time of supply under section 13 अपने bills raise नहीं कर पाते. तो जब भी आप किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस को डील करते हैं और हम रेट चेंज की बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज प्लीज ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर रेट चेंज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन सेक्शन 13 और सेक्शन 14 ऑफ द CGST एक्ट, आज आपको और मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, आज हम दोनों को नहीं पता, बट जब डिपार्टमेंट ऑडिट पे आएगा, स्क्रूटनी पे आएगा, असेसमेंट पे आएगा, जो कि बहुत जल्दी आपको बहुत सारे नोटिसेस देखने को भी मिलेंगे. नाउ द गवर्नमेंट इज इनटू अ स्प्री ऑफ अंडरटेकिंग GST ऑडिट्स. गॉन आर द डेज जब वैट की, एक्साइज की और सर्विस टैक्स की बात होती थी. अब गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर, they are going ahead with GST audits, they are going ahead with GST scrutinies. So whenever you will find a rate change in government contractor, the first thing which you should ask your client कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसकी डिमार्केशन बड़ी क्लियर करिए कि पुराने रेट में कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं आपके और नए में कौन से आ रहे हैं. दूसरा, आपके जितने इनवॉइसेस पेंडिंग हैं जिनमें पुराना रेट लगना है, इट शुड बी सजेस्टेड टू देम कि आप 18th जुलाई से पहले पहले उन इनवॉइसेस को रेज कर लीजिए. अगर आपने नहीं रेज करे, देन the rates are increasing. Even though time of supply requires 12%, the officers, because of the date, the department will demand 18%, and government department will say, no, we will pay 12%. So in order to save your clients from this particular hassle, you should advise your clients कि आप in particular cases में, we are waiting for the rate change notifications very eagerly, क्योंकि उसके जितने ifs and buts हैं, and I'm sorry to say, but yes, there are fine prints which most of the time we are very disappointed to see those fine prints. Assessee never wants any restriction, any kind of fine print. जो बोला गया वो सिंपल था 12 से 18. अगर उसके अंदर कोई ITC रेस्ट्रिक्ट किया गया कल को, या कोई और क्लॉज डाल दिया गया जिसके अंदर उसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट आता है, it will be very disappointing for any taxpayer. So hoping that it will not be there, the simple thing is 18 जुलाई से पहले जितना काम हो चुका है उनके इनवॉइसेस रेज कर दीजिए. बट प्लीज डू नॉट, नाउ एज अ वर्ड ऑफ कॉशन, प्लीज डू नॉट, out of excitement, out of trying to save. Now I'm very cautiously using the word trying to save. Why trying to save? Most of the government contracts you will find are inclusive of taxes. We are giving you 100 rupees, you have to pay tax out of that only. Now some of the taxpayers will be tempted कि हम एक काम करते हैं, 18 जुलाई से पहले बिल रेज कर देते हैं, काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है, तो वो 12% पे अपना टैक्स जो है डिस्पोज करने की जल्दी में इनवॉइस रेज कर देंगे. यू हैव टू एडवाइज दोज सच क्लाइंट्स कि इट इज नॉट बाय चॉइस दैट आपने इनवॉइस रेज कर दी तो आपका 12% हो गया. यू विल हैव टू अलाइन योरसेल्फ एज पर द टाइम ऑफ सप्लाई. व्हाट डज टाइम ऑफ सप्लाई सेज? अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपका इनवॉइस रेज करने का टाइम है तो आप रेज करिए, और जो टाइम होगा जिस वक्त आप इनवॉइस रेज करेंगे, that will be taken as a time of supply. Section 14 provides 2/3 rule, but in most of the government contractors, Section 14 will not be applicable. So be very careful when you are taking the cases of a government contractor. आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है, ना तो कोई भी इनवॉइस जो काम पूरा नहीं हुआ है वो रेज होनी चाहिए. नंबर 2, जितने काम पूरे हो चुके हैं उनको मत होल्ड बैक करिए, उनको आप रेज करवा दीजिए, ताकि अगेन
You are not stuck between 12% and 18%. Now, what are the government contracts which are which are going for the rate change? Works contract for roads, bridges, railway, metro, effluent treatment plant, crematorium. All these things which are put up, or for that matter erected, or for that matter constructed. 14 activities as envisaged in the works contract when you are undertaking repair, renovation, fitting out. All these activities when undertaken on roads, bridges, railway, metro, effluent ETPs and crematoriums, all of them will be going for a rate increase from 12% to 18%. And इस category के अंदर केवल government contracts नहीं, this is applicable to private also. So there are contractors जहाँ पे वो residential projects में ये सब काम करते हैं. They have to be very careful while quoting the new rates, and in case there is a old contract going on, they have to be very careful in terms of increasing the rates. Please also understand, मैं एक चीज और आपसे कहूँगा, there is something called anti-profiteering. Whosoever has a taste of anti-profiteering understands the gravity कि anti-profiteering क्या चीज है. अगर आपने 12 से 18 आपका रेट हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इफेक्टिवली आपकी कॉस्ट 12 से 18 बढ़ गई है. हो सकता है पहले आपके पास ITC accumulate हो रहा था, which was again a cost to you. If now to that extent, to the extent of accumulation of ITC, that is getting siphoned with the rate increase. So suppose 3% का ITC accumulate हो रहा था. My dear friend, you can only charge additional 3% as the increase in price from your customer. ये ध्यान रखिएगा, एंटी प्रॉफिटिंग के अंदर ये चीजें आपको बहुत ध्यान रख के चलनी है. सिमिलरली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अब मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ, ये मैंने जो रोड ब्रिजेस बोला ये एप्लीकेबल है टू ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को आप प्रोवाइड करेंगे, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कैनाल्स, डैम्स, पाइपलाइंस, प्लांट फॉर वाटर सप्लाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल एक्सेट्रा. और जो ये रेट इंक्रीज हुई है फ्रॉम 12 to 18%, please also note this is applicable on the subcontractors also. So this benefit was extended to subcontractors also, कि अगर वो उस कॉन्ट्रैक्टर को रेट प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिनका रेट 12% था, तो ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टर्स का भी रेट 12 से 18 हो गया है. सो ये थोड़ा सा जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, whether you are a contractor or a subcontractor, all these things will be very material in determining the taxability on the coming 18th. And proactive steps, if have to be taken now. Review all the clients who have government contracts so that you can opine them, you can tell them in a positive manner today. Now, my dear friends, the second thing, Sureshi, please let me know what is the second topic which you had just... Storage of taxable commodities. Sir, storage of taxable. Gaurav ji, मैं जो भी questions हैं, I think I will take up at the end. Dubey ji is asking if it is a subcontractor of government contract, what will happen about rate? I think, sir, I have answered this question. Now, anti-profiteering, I'm just putting into one simple line again. अगर आपका कोई भी ITC आपके यहाँ पर कॉस्ट में कन्वर्ट हो रहा था और अब आपका रेट इंक्रीज हुआ है जिसके कारण वो ITC सब्स्यूम हो जाएगा, then in that particular case you have to be cautious that to that extent you cannot recover the price increase for tax rate from your customer. So you have to make a working where you have to show that there was no earlier loss to you, and this 6% is an absolute increase in the price. That is what anti-profiteering will look at. Now, sir, coming on to the second, which was the rate change in terms of taxable commodities. Now, this is a very interesting thing which has come in front of already all of us. अगर आप कोई भी commodity warehouse आप storage करते हैं जो कि taxable agricultural produce है, then in that particular case you will be required to pay the taxes now. Now, what does a warehousing
सर्विसेज सप्लायर, मतलब मेरा एक वेयर हाउस है और मैं आपके गुड्स जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उनको स्टोर कर रहा हूं, तो मेरे पे क्या लाइबिलिटी गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया? उसने ये इम्पोज कर दिया खाली मेरी सर्विसेज का टैक्स रेट मुझे नहीं पता होना चाहिए, मुझे उन सब सर्विसेज का टैक्स रेट पता होना चाहिए जो मैं स्टोर कर रहा हूं। क्यों? अगर मैं कोई टैक्सेबल प्रोड्यूस को स्टोर कर रहा हूं, then in that particular case I will be required to pay tax on that particular commodity, on that particular supply of service. Now this has become very tough for a supplier who is merely supplying the warehousing services. क्यों? मैं उस warehousing agent के पास जाता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि सर मेरे जो goods हैं वो तो exempt है. Now on my undertaking he is not charging tax, but that does not relieve him from his own liability. If tomorrow the authorities come and or they are of the opinion that the produce which has been stored is taxable, so in that particular case, my dear friend, the person who is into the warehousing business is into a lot of fix. Why? Warehousing of agricultural produce was absolutely exempt under notification number 12 by 2017 till now, but गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आपके जो टैक्सेबल प्रोड्यूसर्स हैं आप उनके ऊपर हमें टैक्स, आप अगर उनकी स्टोरेज कर रहे हैं तो हमें आपसे टैक्स चाहिए. आई थिंक एवरी वेयर हाउस पर्सन, और ये बिजनेस राई और इन एरियाज में बहुत सारा है जो दिल्ली के जैसे खारी बावली एरिया को सपोर्ट करते हैं, उन सब लोगों को अपने कंसल्टेंट से एक बहुत बड़ी मदद चाहिए होगी. उनको वो पूरी लिस्ट चाहिए होगी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, कौन से अब एग्जेम्प्ट है, कौन से टैक्सेबल है. एक छोटी सी गलती, इट विल नॉट लीड टू अ डैमेज ऑफ 5%, इट विल लीड टू अ डैमेज ऑफ 18%. उसने जो भी वेयर हाउसिंग चार्जेस लिए होंगे उसके ऊपर उसका जो टैक्स रेट है वो नील नहीं रहेगा, एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, वो 18% हो जाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटा सा सजेशन मैं थ्रू दिस फोरम आई वुड पुट इट बिफोर गवर्नमेंट that please do not go in a blank manner. It is better if you can list the commodities on which you are wanting to charge the tax from that particular supplier of warehousing services, so that we are not sitting on a huge litigation कि काजू का रेट टैक्सेबल था, आपने exempt मानकर इसके ऊपर आपने जो चार्ज लिया वेयरहाउसिंग का उस पर टैक्स देना चाहिए. सो माय सिंपल पॉइंट इज, जिसका जो काम है उसको उसकी सर्विसेज के टैक्स रेट के बारे में पता होता है. आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको बाकी सारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के टैक्स रेट्स पता होंगे तब वो अपनी डिसीजन को कर पाएगा. सो आई थिंक आई हैव टेकन एम्पल टाइम ऑन दीज टू पार्ट्स. With this, I second your opinion. Already flooded with calls from lot of warehousing guys who are rendering services, जो चांदनी चौक, खारी बावली वगैरह वालों को, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं. They are already cribbing and crying कि अगर बाई चांस सर सरकार ने टैक्स लेना भी है तो एक कॉमन रेट दे दें, अगर कोई एग्जाम सर्विसेज है उसका भी दे दें, और अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई है उसका भी एक कॉमन रेट दे दें, 2%, 4%, 6%, whatever is the slab or new slab or existing slab. But why we are going to get confused? क्योंकि हमारे तो बंदे इतने स्ट्रांगली मॉनिटर भी नहीं कर सकते कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रेट पे बिकता है. देखो दो प्रॉब्लम आ गई इसमें. नंबर एक तो वो वेयर हाउसिंग वाला बेचारा प्रॉब्लम में आ गया. दूसरा, जिसके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्टोर हो रहे हैं वो यूजुअली 5% पे टैक्सेबल. वेरी करेक्ट. वो इन्वर्टेड ड्यूटी में चला गया. अब अगले साल गवर्नमेंट क्या कहेगी? अरे आप इन्वर्टेड ड्यूटी में चलिए, हम एक काम करते हैं, हम आपको इन्वर्टेड ड्यूटी से बाहर निकालते. कैसे लाएंगे? टैक्स बढ़ा देंगे. उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का टैक्स रेट 5 से 12% कर देंगे उसको 5 से. तो देखिए हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रही हैं बाय increase of tax rates. Yes. I think we need to think seriously. GST was supposed to, एक बहुत indirect tax की बहुत पुरानी एक प्रथा चली आ रही है कि you cannot charge the tax at the same rate, at the enhanced rate on all kinds of services or goods which are being supplied in the market. There is always a justification. The requirement of the masses, जो कि शुरू से माना गया है, रोटी कपड़ा और मकान, उसको आपको, और अब नए दौर के अंदर हम उसमें ऐड कर देते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन, इनको बहुत ही बेसिक रेट पे, यूजुअली निल एग्जेम्प्ट रेट पे रखना चाहिए.
and then comes to the essential commodities like packaged water, drinking water, and for that matter, your ready-made garments, basic, that should be at 5%. Then comes the normal goods, electronic goods, your daily requirements, which are in form of chips or whatever. Those are second level of consumption. Unko 18, and then comes a luxurious watches, luxurious cars, every car at 28%. That is acceptable. So the worst is, Gaurav bhai, all to curtail down all the inversions, चाहे वो किसी भी चीज पे हो, चाहे ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे भी उन्होंने यही स्टैंड लिया कि इन्वर्जन हटा रहे हैं. प्रीवियसली उन्होंने गारमेंट्स के ऊपर भी ऐसे किया था कि इन्वर्जन हटा रहे हैं. सारे इन्वर्जन हटाने के लिए टैक्स बढ़ा दो, वो भी कितना, डबल से भी ज्यादा, मींस 5 से सीधा 12%. सुनने में कितना छोटा सा लगता है, बट लुक एट द इम्प्लीकेशंस ऑफ द वैल्यू व्हिच द कस्टमर हैज टू पे. क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को या उसके रिफंड्स को या उसके लकूनास को सॉल्व नहीं कर पा रही, तो किसके ऊपर ठोक दो, सीधा कस्टमर के ऊपर, एसएससी विल पे. ठीक है जी. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी ड्रैकोनियन स्टेप्स दैट गवर्नमेंट इज डूइंग. इवन ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, आई थिंक वी कैन ऑल्सो हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, कि लॉट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जिनका अभी आप ये बता रहे हैं कि देयर वुड बी अ इशू कि पुराने टैक्स रेट और न्यू टैक्स रेट की क्या इंप्लीकेशन आएगी, इवन देयर वर्किंग कैपिटल विल गो फॉर अ टॉस इफ यू एनालाइज इट डीपली. लॉट ऑफ थिंग्स, वरना आपने 5-12% वाला प्रोविजन निकाला ही क्यों था? पहले ही रहने देते. व्हाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर गिवन सम रिलीफ? So I think this will be a big challenge to the entire industry. This 47th meeting was not a meeting. Himanshu bhai rightly said, खूब बड़ा धमाका किया उन्होंने. Entire course of law is getting changed. So I think it was a celebration and a summary of the 5 years of GST. या सर, जैसे 5 साल पहले जीएसटी को भी धमाकेदार तरीके से छोड़ दिया गया था मार्केट में कि जाओ बेटा खुद ही ग्रो अप, है ना. सेम वे में 47 मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि लेट अस रिपीट द हिस्ट्री. तो रादर देन मेकिंग अ जीएसटी डे, उन्होंने 47th काउंसिल मीटिंग के रिपरकशंस निकाल दिए. चलिए, एनीवेज, गोइंग फॉरवर्ड, I am just putting one thought to everyone. When you are looking at the rate changes, when you are looking at any of the other changes which other experts, including Rahul bhai, will be speaking on, be very, very careful in terms of the application, from when it is getting applicable, what all is getting applicable, and how do we have to deal with it. जो हो रहा है वो सबके हाथ में नहीं है. Policy is the exclusive domain of the government, and we have to respect that also. True. If the government will be increasing prices or taxes, sooner or later the public will definitely take that into consideration. So government is sensitive to that fact. Let us leave that to them. But as consultants, as practitioners, our sole focus कि हमारे किसी क्लाइंट से इन चीजों में गलती नहीं हो जाए. मैंने आपसे 2 पॉइंट शेयर करे ऑन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑन द वेयर हाउसिंग. सो प्लीज ध्यान रखिएगा, वेयर हाउसिंग के अंदर मैंने आपसे टैक्सेबल कमोडिटीज की लिस्ट, लेट द रेट चेंज नोटिफिकेशन कम. आई एम होपफुल गवर्नमेंट विल बी काइंड एनफ टू गिव अस द लिस्ट. इफ नॉट, देन योर क्लाइंट इज डेफिनेटली इनटू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. एंड सिमिलरली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 18 तारीख को ध्यान में रखते हुए आप अपने काम को डिवाइड कर लीजिए, कितना पूरा हो चुका है, कितना नहीं हुआ है. डोंट गेट टेम्प्टेड विद द रेट इंक्रीज कि मेरा इंक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं 12 पे ही सारे इनवॉइस रेज कर दूं. सो विद दीज वर्ड्स आई हैंड ओवर बैक टू सुरेश जी. सुरेश जी प्लीज. गौरव जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें जितने भी इम्पैक्ट थे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के या टैक्सेबल कमोडिटी की वेयर हाउसिंग के लिए, वो तो आपने हमें बता दिए. लेकिन अभी एक और टॉपिक है आपके लिए, आरसीएम प्रोविजंस. प्लीज उसको और थोड़ा सा हमारे को बताइए. 47 जीएसटी काउंसिल में क्या इम्पैक्ट आने वाला है कि आरसीएम प्रोविजंस पर. आरसीएम मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आरसीएम में आफ्टर अमित जी राइट उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट मेरा क्योंकि मिक्स है उनके साथ. ठीक है सर, बट तो हम राहुल जी, अमित जी और शुभम जी अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा से, वो हमारे को जितने भी रेट इन हॉस्पिटल्स, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, एज वेल एज जीएसटी सर्विसेज, इन 4 के ऊपर क्या चेंजेस प्रपोज हुए हैं, हमारी 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुआ है, इसके लिए हमें क्लैरिफाई करेंगे, समझाएंगे अमित बंसल जी. अमित जी, ओवर टू यू. Thank you, Suresh sir. Good evening to all speakers
and to all the members of the stars. जैसा कि अभी सुरेश जी ने बताया कि मुझे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें से 3 रिलेट करते हैं विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन ऑफ सर्विसेज पे, और उनमें से एक रिलेट करता है, क्लैरिफिकेशन आई है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑन टाइम बेसिस। तो पहले हम चलते हैं अपना विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन ऑफ सर्विसेज को लेके। फर्स्टली गवर्नमेंट के इस 47th काउंसिल मीटिंग में एक, अभी हिमांशु जी ने भी बताया था कि जो हॉस्पिटल का रूम रेंट है उसके ऊपर से उसको चार्ज कर दिया है, उस पे से एग्जम्पशन हटा दी है। तो हम उसको क्लैरिफाई करने के लिए पहले एग्जैक्टली वर्डिंग्स पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट काउंसिल ने क्या लिखा है इस चीज के लिए। रूम रेंट एक्सक्लूडिंग आईसीयू एक्सीडिंग ₹5,000 per day per patient charged by the hospital shall be taxed to the extent of amount charged for the room at 5% without ITC। तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी इन्होंने पहले तो ये कहा कि रूम रेंट जिसका 5,000 रुपए पर डे पर पेशेंट से ज्यादा का है उस पे टैक्स लगेगा, और बस उसी रूम रेंट पे लगेगा। अगर हॉस्पिटल कोई और सर्विसेज देता है, जैसे नर्सिंग की, डॉक्टर की, या कोई प्रोडक्ट साथ में कोई मेडिसिन वगैरह देता है, तो उस पे कोई चार्जिंग नहीं है, वो जो एग्जिस्टिंग पहले चल रहा था उस हिसाब से चलेगा। अभी सिर्फ आपको रूम रेंट जो 5,000 से ऊपर है वो 5% उस पे चार्ज आपको करना है। और अगर ये रूम रेंट आईसीयू को पर्टेन करता है तो फिर आपको इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो अभी भी एग्जम्पशन लिस्ट में चल रहा है। जैसा गौरव भैया ने भी अभी बताया कि बड़ा सरप्राइजिंग सा ये रिकमेंडेशन था कि बेसिकली गवर्नमेंट, मेरी ये प्रिजम्पशन रहती है कि गवर्नमेंट जो बेसिक थिंग्स है, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, उनको एग्जम्प्ट रखना चाहती है। बट आई डोंट थिंक कि क्या थिंकिंग रही कि इसको एग्जम्पशन को हटाने के लिए। अब इसके इम्पैक्ट्स आए। इसके इम्पैक्ट, एक तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया ही, पेशेंट के ऊपर अब एक कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा इम्पैक्ट इस पे आया है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। हमारे जो मेडिकल सेक्टर है उसमें 90% ऑफ द बिल्स पे करता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इतना भी रूम रेंट इस पे जो भी इस पे टैक्स बढ़ेगा, जो भी सारी चीजें होंगी, वो अब मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी पड़ेगी। तो एक तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई, दूसरा हो सकता है फ्यूचर में आगे वो हमसे अपना जो इनका प्रीमियम है वो बढ़ा दे, तो इसके ऊपर एक इम्पैक्ट हमारे पर ये आएगा। और क्या पहले भी ये लिटिगेशंस का मैटर रहे हैं कि क्या जो जीएसटी चार्ज किया है हॉस्पिटल ने, क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी ले सकती है, क्योंकि व्यू में नहीं ले सकती इस चीज के लिए, बट एक लिटिगेशन का मैटर है। तीसरी चीज, हॉस्पिटल पे अब एक और कंप्लायंस का बर्डन भर गया है कि भैया उसको 5%, जो 5,000 से ऊपर वाला रेंट है उसको अलग से बाइफरकेट करना पड़ेगा और उसको 5% टैक्स लगाना पड़ेगा, और उसके बाद भी उसको आईटीसी नहीं मिलेगा इसके ऊपर। जो भी आईटीसी उसके लिए अवेल नहीं कर सकता, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा उस चीज का। दूसरी चीज, इस बार जो इन्होंने जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड करी है कि जितने रेगुलेटर्स थे उनकी सर्विस को भी। भाई before you complete the topic of this hospital वाला, I would also like to add, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, somehow I think you have missed to mention, वो ये है कि मैक्सिमम हॉस्पिटल्स जो नॉन आईसीयू ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके लिए लोग रूम लेते हैं, which is above to 5,000, वो यूजुअली कंपोजिट सप्लाई है। इट इज अ पैकेज, इट इज गिवन एज अ पैकेज। उसमें कोई भी बाइफरकेशन नहीं होती कि आपका रूम रेंट कितना है, आपका ये कितना है। एक सिंपल पैकेज दे देते हैं कि सर आप आइए, सपोज कोई भी सर्जरी कराइए, या कोई प्लास्टिक सर्जरी है, कोई डेंटल है, व्हाटएवर, जिसमें आईसीयू यूज नहीं हो रहा है, या दूसरे फॉर्म ऑफ आईसीयू जो होता है, आईसीसीयू, कोई भी वो यूज नहीं हो रहा है। सिंपल आपका रूम है, 25,000 रुपीज का पैकेज है, 1 दिन 2 दिन जो भी लगेगा, उसमें डॉक्टर की भी फीस है, मेडिसिन भी है, सब कुछ है। अब वो बाइफरकेशन कैसे होगी? डू दे हैव टू अगेन इशू अ बिल जिसके अंदर हॉस्पिटल के रूम का अलग से बिल दिया जाएगा और बाकी चीजों का अलग से बिल दिया जाएगा? सो इट इज नॉट ओनली, और मैक्सिमम जो इस तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं वो आज की डेट में, जैसे आप 90% इंश्योरेंस कंपनीज का बता रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से ऑलरेडी आज 2-3 कॉल आ गए कि सर लीगल ओपिनियन दीजिए कि हम टैक्स की अमाउंट कस्टमर से, मतलब हमारे जो क्लाइंट है उनसे चार्ज कर लें, बाकी फेस वैल्यू हम दे देंगे।
राइट? तो वो Okay. कहते हैं कि इसके अंदर बाइफर्केशन कैसे होगा हमारे पास, क्योंकि अगर सिर्फ रूम रेंट के ऊपर देना था हमें, तो वो टोटल बिल दे देंगे कि सर आपका जो है आपके क्लाइंट का 25,000 रुपए का रीएम्बर्समेंट है, ये बिल है। वो उसके ऊपर कितने पे टैक्स लगाएंगे, क्योंकि वी ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज द रूम चार्जेस, वी ऑल्सो गेट अ क्यूमुलेटिव वैल्यू का एक अमाउंट। तो आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट लिटिगेशन एरिया, कि हाउ विल यू बाइफरकेट कि उसमें कितना रूम रेंट है। Just wanted to tell you that earlier also the Mediclaim, whenever you used to take reimbursement of Mediclaim, the hospitals and all of them used to give a breakup of room rent, because the Mediclaim policies always have that 1% of the total value will be given as a room rent charges. So hospitals will always provide you, even if you have that composite package, maybe of a heart surgery or anything, they will always provide you with a separate room rent. So I don't think there's a separate challenge in this. There are challenges. Rahulji, Gaurav bhai, please. what Rahul bhai is wanting to say, Rahulji is wanting to say, Rasikji, is even if you have a medical bill from a hospital which is having room rent, medicines, doctor visits, everything is on a itemized basis. Still, it was exempted under the healthcare services, because what you have got is not the individual components, you have got a treatment. Correct. तो आपको जो ट्रीटमेंट मिला वो exempted. रूम रेंट was never seen as a कि आपने वहां पर एक रूम रेंट पे लिया है. Nobody wants to go and stay in a hotel. There is a 5-star which is just adjoining, available at 5,000 rupees. Correct. I think somewhere the entire concept will be causing a lot of litigation for the very simple reason, आपने composite supply के concept में से component को बाहर कर दिया, और आपने जब उस component को बाहर कर दिया, वो composite supply टूट गई, और आपको ने खुद कहा, which is naturally bundled, Correct. it will be taken as a composite supply. So आप room rent को बाहर नहीं कर सकते. Now tell me a situation, कोई patient केवल ऐसे बिल पे बैठा होगा जिसमें केवल रूम रेंट होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है. So room rent is nothing but a part of the entire treatment, a part of the composite supply, and therefore it was enjoying an exemption. क्या मेरे पास notification number 12/2017 में रूम रेंट की कोई अलग से exemption थी? नहीं थी. नहीं. तो जब मेरे पास exemption नहीं थी और आप इसको separate supply मानते हैं, तो इसका मतलब आज तक तो इसका रेट 18% था. ये तो आपने बेनिफिट दिया है कि ये रेट 18 से चेंज करा है. Whatever rate you want to put it, I think the government has misplaced the entire thought process. हाँ, ये हो सकता है any person who is staying in a room having a room rent more than 5,000 rupees per day, उसकी पूरी ट्रीटमेंट 5% पे टैक्सेबल हो जाएगी. Yes, that would have been the right way. अगर ऐसा नोटिफिकेशन आ गया, आई एम सॉरी टू से, वी आर हिटिंग रॉन्ग सब्जेक्ट विद द टैक्सेस. हम ये कह रहे हैं कि जिसने एक ढंग के कमरे में, एक गरीब आदमी भी गलती से अगर एक पैकेज ले लेता है, क्यों वो भी इंश्योरेंस में कवर्ड है, या फॉर दैट मैटर जितने एम्प्लॉयज हैं वो सारे ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर होते हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली इस 5% में फंस जाएंगे. सो आई थिंक हमने क्या करा है, हमने अपने टैक्सेशन को हेल्थ केयर में ले आए, and sooner and later we will come down from 5,000 to 1,000, and 1,000 to we will only remain to ESI hospitals. If that is the thought process, healthcare for that matter in terms of exemption is gone. गौरव भाई, आई थिंक एडिंग फर्दर इनको रूम भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. डेफिनेशन में रूम की भी डेफिनेशन लगानी पड़ेगी कि होटल का रूम कौन सा होता है और हॉस्पिटल का रूम कौन सा होता है. They'll have to add it into GST law. कोविड के टाइम पर जो राहुल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच बात है. अगर आपको याद होगा, होटल के रूम्स भी कोविड रूम्स में कन्वर्ट किए गए थे. Yes. And they were extended because the government and the hospitals did not have the infrastructure to support. So hotel rooms were converted into COVID infrastructure. Yes, COVID infrastructure. Yes. तो उन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है. Let us wait for the rate notification. This is a very sensitive subject. If the notification says any treatment in a room which is more than 5,000 other than ICU, that will be taxable. I think lot of mess is gonna be around. Number two,
आपके एक पेशेंट का कभी ये नहीं होता कि वो पूरे ही वक्त एक रूम में रहता है, कभी आईसीयू में गया, कभी बाहर आया, अब वो मिक्स सप्लाई कहलाएगी। सो अल्टीमेटली अगर इस मोटिव की तरफ जा रहे हैं कि भाई द बेस्ट पार्ट कुड बी कि जो जिंदा बच के हॉस्पिटल से आगे वो टैक्स दे दे, otherwise exempt. That would be the ultimate exemption notification which we can wait for. So I think we put this topic to rest. We hand it over back to Amit ji. Thank you, Gaurav ji. Thank you, Rahul ji, to deliberate on this and explain further this point. Next is they have also the GST Council has also एम्बिट में ले आई है सर्विसेज ऑफ आरबीआई, आईआरडीए, सेबी, एफएसएसएआई और जीएसटीएन। जो सर्विसेज आईआरडीए, आरबीआई, सेबी किसी भी इंस्टीट्यूशन को जीएसटीएन को कहीं पे भी देती थी, अब उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। अभी उसके ऊपर रेट अभी स्पेसिफाई नहीं हुए हैं, अभी नोटिफिकेशन आएगी तो पता लगेगा। तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हम कभी फ्यूचर में, मतलब जब हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, हम एनबीएफसी रजिस्टर कराने जा रहे हैं आरबीआई के पास और वो रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रही है हमसे, तो उस पर भी हमें जीएसटी अब देना पड़ेगा उस चीज को लेके। सेम केस इन जीएसटीएन। जीएसटीएन जो भी सर्विसेज अपने एजेंसी बैंक्स को या किसी अदर इंस्टीट्यूशन को देती है तो वो जीएसटी चार्ज करेगी उस चीज के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास है इस चीज के लिए, जो मेरे पास तीसरा Amit ji, I'm so sorry, but we have the privilege of having Bhatia sir also with us. HC Bhatia ji हमारे साथ हैं। मैं सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा on the hospital room rent, sir. How can we take this, to the government that this particular service is a composite supply? और कहीं पर इसके अंदर अगर इंटरवेंशन वो करती है गवर्नमेंट और एक बाइफिकेशन क्रिएट करती है, it will cause a lot of mess. So sir, I'm just bringing to your knowledge, अगर आप हैं तो 2 मिनट हमें इस पॉइंट पे थोड़ा सा गाइड करें। Guruji, I believe that this is it is an essential component of hospital services, and therefore it cannot be dissected and it cannot be separated. As you said, it is a part of composite supply, and per force of law we cannot separate. We should not have. And we should not, and we cannot separate it. It is an essential component of medical services, hospital services. Sir, आप वैट के अंदर भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जब गवर्नमेंट वांटेड टू टैक्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग ऑपरेशन, जो कि स्टंट्स वगैरह पे वो टैक्स लगाना चाहते थे एंड दे फेल्ड। Yes. आई थिंक हम दोबारा से रूम रेंट में भी उसी सिनेरियो और उन्हीं केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल यही वजह है। That is why I say that this law is being distorted. मैंने ये जो भी लिखा सिर्फ इसी वजह करके लिखा है। Right, sir. Thank you. Sir, we are giving it back to Amit ji. Amit bhai, please. Good evening, sir. SC sir, thank you for your deliberation on the topic. Now, there is another withdrawal of exemption, that is hotel accommodation up to ₹1,000 per day. Earlier it was taxed at the rate of nil. There is nil. Now it has been, exemption has been withdrawn. Now it will be taxed at 12%. पहले इसके अंदर स्लैब रेट था, 1000 रुपए तक के रूम रेंट पे कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। 1000 से 1000 to 2500 it is 12%. 2500 to 7500 is 18, and above 7500 is 28%. Now इस अमेंडमेंट से आने से एक तो जितने भी स्मॉल गेस्ट हाउसेस थे, इनसे जो बेसिकली 1000 रुपीज से कम चार्ज कर रहे थे, वो एक इस एम्बिट में आ जाएंगे और उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा उस चीज को लेके, और उनको अब जीएसटी की सारी जो भी उनके ऊपर एक्ट लगता है वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। However, this amendment has a positive impact on the hotel industry also. क्योंकि पहले होटल इंडस्ट्री जो 1000 रुपए पे भी 1000 रुपए वाला रूम भी दे रही थी और 1000 से ऊपर वाला रूम भी दे रही थी, तो उसको सेक्शन 17 में अपॉर्शनमेंट करनी पड़ती थी, रेड विद रूल 42 एंड 43। अब वो उस क्रेडिट को यूज कर पाएगी और उसको स्टीमलेसली अपने आउटपुट टैक्स के साथ उसको एडजस्ट भी कर पाएगी। Earlier also, from the perspective of consumer,
वो उनकी कॉस्ट में ऐड हो जाता था, जो भी वो रिवर्सल करते थे, जो भी आईटीसी वो रिवर्सल करते थे। और कहीं ना कहीं से तो गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं से तो होटल इंडस्ट्री वो चार्ज करती थी, जैसे कहते हैं कि तेल तो तिलों में से ही आएगा। पर अब ये क्या होगा कि इसका बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा, जो कि आईटीसी रिवर्स किया जाता था, अब इस केस में रिवर्स नहीं होगा इस चीज को लेके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लास्ट पॉइंट था क्लैरिफिकेशन ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑन टाइम बेसिस। इसमें जीएसटी काउंसिल ने 2 क्लैरिफिकेशन लेके आए हैं। पहला क्लैरिफिकेशन जो लेके आए हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर टू अ बॉडी कॉर्पोरेट on time basis is taxable in the hands of body corporate under RCM। RCM वाला पॉइंट अभी गौरव भैया लेंगे, तो वो उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे इस चीज को। पर इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बॉडी कॉर्पोरेट लेती है, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट को अंडर RCM उसको रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा और उसका आईटीसी लेना पड़ेगा। दूसरा इसमें क्लैरिफिकेशन दी है कि रेंटिंग ऑफ व्हीकल विद ऑपरेटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन टाइम बेसिस attracts GST at 18%. However, if this renting includes cost of fuel, then the consideration will be charged at the rate of 12%. तो पहले ये 18% में चार्ज हो रहा था, इसको रिड्यूस करके 12% कर दिया गया है। पर इन दोनों क्लैरिफिकेशन में गवर्नमेंट एक पॉइंट पे साइलेंट है कि अगर सिर्फ हमने रेंटिंग करी है मोटर व्हीकल की, ना तो हमने उसमें ऑपरेटर दिया है, ना ही हमने उसमें कोई फ्यूल चार्जेस लिए हैं, तो इस पे क्या रेट रहेगा। तो मेरे व्यू में ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में नहीं आएगा, ये राइट टू यूज ऑफ गुड्स के अंदर ये टैक्सेबल होगा, जो कि 28% एट द रेट 28% प्लस सेस आएगा। अगर किसी इसका, राहुल भाई, अगर आपका कोई और व्यू है इसके अंदर, तो आप प्लीज ऑडियंस के साथ थोड़ा सा शेयर करें। अमित भाई, आई थिंक दिस स्पेसिफिकली हैज बीन मेंशन्ड, जैसे आज की डेट में काफी पॉपुलर स्टार्टअप्स आ गए हैं, Zoom एंड ऑल दोज, वेयरइन यू स्ट्रेट अवे रेंट अ मोटर व्हीकल फॉर आवर्स। उसमें फ्यूल भी आपका अपना होता है, ड्राइव भी आप खुद ही करते हैं, राइट? So I think to उसके अंदर, in my humble view, I think if anybody has a different opinion, I think it straight away covers that, because उसमें ना कोई फ्यूल बोर्ड डलवा के देते हैं, ना उसमें कोई ऑपरेटर होता है, उसमें आप ही ऑपरेट करते हैं, आप ही अपना फ्यूल डलवाते हैं, आप ही टोल टैक्स पे करते हैं, जो भी whatever applicable equations हैं, जो भी consumables हैं, वो आपके खुद के होते हैं, and you only charge it for the hours which you are consuming, right? So I think that clarifies this issue. उसमें right to use वाला ये शायद नहीं आएगा, बाकी I could be. But in my opinion, it is a litigative matter. Authority I think we can have views of Gaurav bhai and Suresh ji and Bhatia sir and Diwan sir, whosoever wants to share, because I think this, in my humble submission, it is very clearly mentioned. It should not be a big concern or dispute. Baki, what Gaurav bhai or Suresh ji wants to say, I think we can. Yeah, I think we also have Avinash ji with us. Avinash bhai, good evening. Good evening, Avinash sir. We have Avinash ji also with us. Yeah. So I would request Avinash bhai, please आप भी दिखिए सबको, अगर if it is possible, and what are your views in terms of this clarification? If you want to add something on this, Shubham ji, please. Avinash bhai, your voice is breaking. You are audible. Shubham ji, you want to add in something? Your opinion on this? Give me 5 minutes. I'll get back on this. Just give me 5 minutes on this. Sure. Sure, brother. Acha, I am just pointing out for benefit of all, the government was very categorical when they came out with this clarification. They are saying renting of vehicle with operator. So when it is with operator, means the driver is there along with the vehicle,
right? And the second one says GST on renting where fuel cost is included. So it is in addition to the operator. So Rahulji, when we are looking into the entry of transportation of passenger and renting of motor vehicle therein, the component of operator has become very, very important. Yes, and that will be included in the transportation of passengers. Yes. So when we are only talking about renting without fuel, without operator, definitely what Amit ji has said, I would second that. That is, government ने clarification देकर मेरे हिसाब से उन्होंने कहा ये सब तो 18% में है, बाकियों का आप सोचिए. मतलब टैक्सी बिजनेस 18% में है और जो सेल्फ ड्रिवन वाला इक्वेशन है SDRs जिनको हम कहते हैं, and for that matter मैं उससे बड़ा टॉपिक जो सबके सामने आएगा, in many companies there are employees who are taking a part of their CTC yes as a reimbursement or a renting of motor vehicle in one of the name of the relatives or a company. In those particular cases, the rate of tax will definitely be a huge pinch to all such employees. और इसका एक जो RCM के अंदर बात करी ना, that is a bit of a surprise to me, क्योंकि जहां पर उन्होंने employees की बात करी और RCM की बात करी, I think the clarification is limited only to that particular vehicle जहां पर the employee is charging and not giving the vehicle on rent. He is charging vehicle with fuel. In that particular case, RCM will be applicable, not on mere supply or renting of the vehicle to the company. So, हमारे पास 5-6 scenarios बन जाते हैं. Number 1, motor vehicle with operator with fuel. Number 2, motor vehicle with operator without fuel. Number 3, motor vehicle without operator without fuel. And I am not able to envisage a situation where we can say motor vehicle without operator but with fuel. So that particular contract I have not seen, because that is a hypothetical kind of an arrangement, not practical. So ये scenarios हमारे सामने हैं, and we have to be very cautious on the taxability what we suggest to the client. चलिए sir, we can proceed please. Amit ji, further to add anything? No sir, thank you for the thank you Star and thank you Suresh ji and thank you Gaurav ji, thank you Rahul ji. अमित जी एक चीज आपसे और पूछनी है. There is one more entry, renting of residential dwelling to business entities. Now, residential has always been taken as an exempt thing. Yes. What is this they are trying to say when we are, and what kind of a scenario will to business entities, the residential dwellings? Sir, in my humble view, Rahul bhai, Gaurav bhai will elaborate the things. In my humble view, is renting of residential dwelling for business entities. जो रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, जो बिजनेस एंटिटीज अपने डायरेक्टर्स के लिए कोई प्रॉपर्टी को लेती थी उसके रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो अब वो वाला रेजिडेंशियल जो ओनर था उसको पहले ये उस पे हमें जीएसटी नहीं लगाना होता था, बट अब ये जीएसटी के एम्बिट में आ गया है और उसको अब जीएसटी देना पड़ेगा इसके ऊपर. That means if it is a company lease, it's a company lease, it automatically gets covered. It automatically gets covered. Even if he is not reaching the threshold of getting a registration, if the rent is less than the specified limit, now I think he would be mandated to charge tax. Am I right, Amit bhai? This is how it would work. The threshold limit will be there if it is if I am renting to the business to any body corporate or any business entity and my total retail is below 20 lakhs, then it will be considered as a supply by an unregistered person. But if my threshold is above 40 lakhs or above 20 lakhs, and still I am claiming the exemption due to that because कि मैं residential property rent पे दे रहा हूँ, तो वो अब हम मेरे पास से हट जाएगी. अब मुझे 18% उस पे चार्ज करना पड़ेगा अगर मैंने उसको पहले भी, if I am not wrong, पहले भी had to pay. Residential was zero. राहुल जी, इसमें मैं आपके डायरेक्टर को अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी गई है, कंपनी को बिलिंग की गई है, डायरेक्टर के हैंड्स में वो आरएफए की तरह परक्विजिट की तरह ऐड हो जाती है, बट
for the person who is giving on the to the company on rent, it is a residential property given for residential purpose, exempt. Exactly. Now that exemption is gone if it is given to a commercial entity. So I think that will be very, very wide to cover not even companies. Let's wait for the rate notification to come. It will be very wide. Himanshu ji, you were saying something. Sir, I'm also saying the same thing. That is only for the purpose of company giving his employees to residence purpose, because that is only used for the residential property for the residential use. But before it was exempt in the hands of supplier, but now it will be taken. गौरव भैया, इसके ऊपर अगर ये जो अभी पॉइंट रसिक जी ने उठाया, एक पॉइंट मेरे मन में आया कि क्या पीजीज भी इसमें कवर हो जाएंगे, जो स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं बेसिकली फॉर द रेंटिंग? PGs के अंदर the invoicing is still in the name of the student, the person, so it will not be. But Yes. आपको याद होगा एक क्लैरिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की, जहां पर ये पूछा गया था क्या मेरे हॉस्टल एकोमोडेशन एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने कहा उस क्लैरिफिकेशन में कि इट इज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन सर्विसेज एंड ऑल्सो देयर रेंटल इज लेस देन 1000 रुपीज पर डे। तो जो आपकी एकोमोडेशन सर्विसेज थे 1000 का जो क्लॉज है, जब वो एग्जेम्पशन से बाहर हो गया, then my dear friends, please also mind there are other hidden activities which might get taxable, so you have to very thoroughly look जो hostel activity है, PG activity है, residential for residential purpose. So PG अगर long term stay है residential purpose, long term stay international define करा गया है 3 महीने से ऊपर। अगर short term stay है then there is some problem, look into it. और इसमें सर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जो इंटरनेशनली पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल के पास, वो एक पैकेज में आते हैं जिनको ये रेंटिंग हॉस्पिटल खुद करा के देता है, तो अब शायद वो भी इस एम्बिट में आ जाएंगे और उस पे जीएसटी लग जाएगा उस चीज के लिए। See, for the patient, the services will still remain healthcare service exempt. From the residential unit to the hospital unit, taxable. Well taken point, Amit ji. Thank you, Amit ji. Thank you, Amit ji, for your deliberation on this point given to you. वैसे तो रेट ऑफ टैक्स के ऊपर लगभग 5 या 6 पेजेस का हमारे पास प्रेस रिलीज था, लेकिन सबको आज हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो न्यू क्वेश्चंस थे या जो इम्पोर्टेंट हमारे चेंजेस रिलेटेड टू टैक्स रेट्स थे, वो हमने डिस्कस किए, चाहे उसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करी गई हो या कमोडिटी टैक्सेबल वेयर हाउसिंग की बात कही हो, रूम रेंट इन हॉस्पिटल्स, होटल अकोमोडेशंस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स या रेजिडेंशियल हाउसेस की हमने बात ऑलरेडी कर ली है। बाकी जब जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे उसके बाद हम अगली किसी मीटिंग में रेट ऑफ टैक्स की बात करेंगे। बिसाइड्स दिस देयर आर मेनी चेंजेस इन लॉ एंड प्रोसीजर्स आल्सो। अब हम लॉ प्रोसीजर्स की तरफ चलते हुए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने डॉक्टर राहुल कक्कड़ जी से, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस ई कॉमर्स ऑपरेटिव रिलेटेड इंडस्ट्री से भी आए हैं। चाहे उसका इम्पैक्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर को ना करना हो, लेकिन जो सप्लायर्स उनसे जुड़े हुए हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ चेंजेस आई हैं इस 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, और नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ओवर टू डॉक्टर राहुल कक्कड़ जी फॉर ऑल रिलेटेड चेंजेस रिलेटेड टू ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज। Thank you, Suresh ji. Thank you for letting me present my views on the changes in the e-commerce industry. Friends, good evening, everybody. Gaurav bhai, I think if you permit, there has been some inputs from Bhatia sir recently. I think if we want, we can cover that also, and then I can start with my deliberation. Yeah, please cover it. Yeah, Gaurav bhai, I think we can read the chat box. Bhatia sir has written just to envisage a situation wherein no beds are available in the hospital, and as per the force, the patient has to take the room in the hospital for his treatment, and is provided treatment by the doctors in his room and is being charged the room rent. I think Bhatia sir has just added in his views. It's a very sensitive comment what he has made कि एक बंदा जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता था 5000 का रूम, बट अगर वो ट्रीटमेंट कराने गया और नीचे की कैटेगरी के रूम्स अवेलेबल नहीं है, then a person who is already forced to pay more for the room rent, now to add to his pain,
we are also charging GST on that 5,000 plus room. So somewhere that sensitivity, which is in sort of a forced payment being made by that patient, we have to keep in mind. I think that particular subject, government को कहीं ना कहीं पे इस sensitivity को समझना पड़ेगा. Maybe this one exemption or this one exemption which is taken away may be rolled back. My humble submission will be that. Great. Okay, coming back to my deliberation. Good evening, friends. I think 47th GST Council meeting के अंदर I think 4700 BC discussions हो चुकी है. Right, it is a very popular brand probably which talks about eating popcorns. So I think government was enjoying that phase, eating popcorns and giving these kind of recommendations which are so extensive, so exhaustive. I think I'm short on words. Probably after a very long gap, we have seen 5 notifications being published in one day. और अभी भी बहुत सारी notifications pending है on the recommendations, right? Which will be enforced in the coming days. Like we have recently discussed कि rates की notifications आनी है और e-commerce के अंदर जो changes हैं उसको भी notify किया जाएगा. Still have everything has not been notified जो भी recommendations आई हैं. Let us briefly touch upon ki what exactly e-commerce industry or government का क्या view है, how is it, because I do a little bit of little higher practice of e-commerce operators and suppliers. So friends, let us understand कि पहले तो e-commerce की gravity को समझते हैं एक bit short time में. As per 2022 or rather 2020, we were sitting at 47 billion USD industry in India, right? So Indian e-commerce was $47 billion, right? Which is a massive, very, very massive figure. And the kind of growth which we are sitting on is very, very high. In 2022, we are expected to grow by almost 21% because since last 2 years have been a COVID era, and a lot of offline sales or the traditional mom and pop or retail sales have got into either a hybrid mode या सारे के सारे आजकल सबकी अपनी एक e-commerce की presence create हो गई है, चाहे वो small किराना store हो, jewelry store हो, कोई भी हो, सबको अपनी एक e-commerce की एक presence create कर दी गई है, या probably I should say factors have forced them to create a presence on e-commerce. And it is currently expected to become 75 billion by the end of this year. So look at the figures. 2 साल के अंदर we are touching upon approximately 80% of growth, right? YOY. So which is very, very massive. But I think इतनी massive figures जो मैंने आपको बता दी हैं government के context में they have not understood and they have not researched well. क्योंकि as on date what probably they have touched upon कि composition dealers, because पहले क्या condition थी, section 24 अगर आप देखें where it probably talks about compulsory registration in certain cases, उसका subsection 10 क्या कहता है कि every e-commerce operator who is required to collect taxes source as per section 52, he has to take a mandatory registration. तो आपकी कोई भी threshold limit हो, आपकी special states में goods or services whatever conditions, आपको mandatory registration लेना ही लेना है. But now what council has recommended कि जो भी e-commerce operators हैं उसके जो suppliers हैं, e-commerce operators के जो suppliers हैं, if they don't want to take a normal registration और वो composition dealers हैं, so they can also supply through e-commerce aggregators, which so far has not been notified correctly or well. There are no FAQs which have been mentioned कि वो होगा कैसे, because अगर हम बात करें e-commerce के अंदर services भी supply होती हैं और goods भी supply होते हैं और दोनों की threshold limits different है, right? Plus अगर हम बात करते हैं e-commerce की composition के through, तो composition के through कैसे होगा, this really government really needs to make a proper ecosystem and define a proper notification, because सबसे बड़ा पार्ट ये है कि जो उसकी कमीशन कटती है या जो TCS की जो प्रोविजंस हैं which were notified by notification 65/2018 and were effective from 1st of October 2018, वो कैसे काम करेंगे? आपका 1% TCS कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि उसका कोई ITC तो उसको मिलेगा नहीं, पहले भी नहीं मिलता है, तो पहले उसको अपने इनपुट नहीं मिलता है और उसका 1% और कट जाएगा तो वो सस्टेन क्या करेगा? प्लस उसकी कमीशन भी कटेगी, 40-45% इज एन एवरेज कमीशन जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स अपने एग्रीगेटर्स के लिए अपने सप्लायर्स के लिए डिडक्शन करते हैं, उसके ऊपर 18% GST भी लगाते हैं,
राइट? तो वो सब उसके इनपुट्स उसको कैसे मिलेंगे? सो ये सिर्फ आई थिंक हिमांशु भाई हैड यूज्ड द वर्ड कि मैं बहुत ध्यान से सुनना चाहता हूँ ई कॉमर्स की, कि उन्होंने एक लॉलीपॉप सी दे दी है। सो हिमांशु भाई, ये लॉलीपॉप भी नहीं दिया उन्होंने, एक रैपर दिया जिसके अंदर चॉकलेट ही नहीं है, या एक रैपर दिया जिसमें टॉफी ही नहीं है। Rahul bhai correctly said, but sorry to interrupt, but adding to this, कि जो TCS है that would be come into my cash ledger, not in the credit ledger. So जो TCS का part जो मेरे cash ledger के अंदर आता है, that will be utilized for the output of payment of my output tax liability. That is what I'm saying. How it would work, they have to notify a ecosystem. I'm not saying कि वो मिलेगा नहीं. You are absolutely right. It comes in your cash ledger. उसका cash refund भी ले सकते हैं हम लोग. लेकिन क्या कैश रिफंड लेने के लिए कॉम्पोजिशन डीलर जो आज तक अभी तक एलिजिबल नहीं था, क्या वो एलिजिबल होगा? दैट विल बी वन. तो जीएसटीएन का इकोसिस्टम भी क्रिएट होगा. प्लस क्या वो कैसे उसको अपनी आउटपुट लायबिलिटी में एडजस्ट करेगा, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं होंगी, वो भी होगा. प्लस उसकी जो कमीशन कटेगी उसके ऊपर क्या है, वो भी होगा. प्लस दे हैव मेंशन्ड टू थिंग्स. सो व्हाट दे से इज इट इज नाउ प्रपोज्ड दैट सच मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन विल बी डन अवे. ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है. And registration will only be required in conditions such as that the aggregate turnover on all India basis does not exceed the threshold limit. All India basis में तो composition dealer होते ही नहीं है, right? Because उनकी supply local है. ठीक है, they are not omnipresent, they are not present in different states. Plus they are saying the person is not making any interstate taxable supply. तो सर मैं सबसे बड़ा point बताऊं, e-commerce के अंदर अगर हम आज दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली के अंदर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रेजेंट ही नहीं. ऑल द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर डूइंग ऑपरेशंस फ्रॉम आइदर गुड़गांव, नोएडा, और नाउडेज दे आर आल्सो कमिंग इनटू कुंडली, सोनीपत एरिया. व्हाई आई से सो, सबके जो बिगर वेयर हाउसेज हैं, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन दिल्ली, बट जो मेजर वेयर हाउसेज हैं वो सारे के सारे ये सब एनसीआर रीजन के अंदर है. और जो अभी एज ऑन डेट जो उनका बिजनेस मॉडल चलता है वो ये होता है कि पहले आप अपना ब्रांच ट्रांसफर करते हैं रियल टाइम और उसके बाद उनके वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं. तो बेसिकली कंपनीज ही आपका गुड्स पिक करके दिल्ली से ले जाती हैं से मानेसर, और आप उसमें इंटरनली बाद में अकाउंट्स में एंट्री कर रहे होते हो कि पहले मैंने ब्रांच ट्रांसफर किया, फिर उनको ट्रांसफर किया, फिर फाइनली वहां से सेल हुई. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ओनली मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज. इंटरस्टेट सप्लाईज के लिए दे आर बार्ड. तो ये इस केस में तो इंटरस्टेट सप्लाई करे बिना वो प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं सकता वेयर हाउस में. Only that's why Rahul bhai, only that's why I call कि लॉलीपॉप पकड़ा दी. Yes. नहीं, ऐसा नहीं है. There are some models जहाँ पे dispatch of goods happens from the warehouse of the seller only. बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स के मॉडल्स भी हैं, लेकिन उसके अंदर क्या उनकी वायबिलिटी आएगी, क्या वो इतनी सारी कंपनीज रजिस्टर्ड यहाँ पे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं. अभी इसमें बहुत कुछ अच्छा लिखा था, इट इज अलाउड बिकॉज लॉट ऑफ स्मॉल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और स्टार्टअप्स हैव कम इन, उनको बढ़ावा देने के लिए. बिकॉज टुडे वी आर हैविंग मोर देन ऑलमोस्ट 16 lakhs ऑफ कंपोजिशन टैक्स पेयर्स पैन इंडिया, राइट? तो उनको नेट में लाने के लिए या उनको एक बेनिफिट देने के लिए किया गया है. बट एट द एंड ऑफ द डे जब उनका इकोसिस्टम में आप फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, you will not be able to channelize their sales or channelize their system, तो ये होगा कैसे, right? And it has not been notified. उसमें clearly लिखा है this is tentatively. ये राधा शुभम भाई का ये एक मैंने आर्टिकल देखा था, it was tentatively mentioned that it would be implemented from 1st January 2023. तो we have to be a watchdog for further notifications, not only notifications, FAQs or some kind of a clarification which has to come कि ये कैसे करेंगे. चलिए, हो सकता है कि समथिंग वर्क्स आउट व्हिच विल प्रॉब्ली हेल्प टू मल्टीफोल्ड आवर इंडस्ट्री आल्सो. अब हम बात करते हैं कि नोटिफाई किया क्या गया ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए. तो बड़ी अच्छी चीज नोटिफाई की गई है व्हिच प्रॉब्ली हेल्प पीपल हु डू मोर ऑफ कंप्लायंस. उनके लिए थोड़ा सा एक इक्वेशन को रिलैक्स कर दिया गया है. सो बेसिकली हमारा जो अभी 3B होता था, वेयर इन वी वर मैंडेटेड टू पे RCM आइदर बाय द एग्रीगेटर और द सप्लायर, व्हिच वाज इन द कॉलम 3.1 जिसमें रिवर्स चार्ज पे करते थे. अब उन्होंने ऐड कर दिया 3.1.1. तो बेसिकली दे हैव एडेड अनदर सब टेबल जिसके अंदर अगर आप एग्रीगेटर हैं या सप्लायर हैं, आप क्लियरली अपना जो लायबिलिटी है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं. इट हैज बीन मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन नंबर 14 एंड द पेज नंबर इज 18. उसमें आप देख सकते हैं टैबुलर फॉर्म में दे हैव मेंशन्ड that the details of supply is notified under subsection 5 of section 9 of the CGST Act.
तो वो अब उन्होंने मेंशन कर दिया है 3.1.1 के अंदर, जिसमें आप अगर इफ यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज on which the electronic commerce operator has to pay section, in the subsection 5 or section 9, वो भी पे कर सकता है. और there are taxable supplies made by the registered person, जो उनके supplier हैं, who are making sales through e-commerce operator, on which the operator is required to pay under again subsection 5 of section 9. उसके लिए उन्होंने addition कर दिया है. This is the only thing which has been notified so far. Right, which is very clear. Otherwise क्या होता था, पहले आपको टोटल आरसीएम के अंदर लायबिलिटी पे करनी पड़ती थी. अब यहाँ से आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा कि इट इज pertaining to your common RCMs or it is pertaining to your e-commerce transactions. So that is the only thing which has been notified. So I just rest. Gaurav bhai, you want to add something? Just to add, this was primarily to get the reporting of the restaurants who are selling through e-commerce operators. Yes, all Swiggy and Zomato kind of provisions have been added, जिनका ecosystem start ही 1st January 2022 से हुआ था, wherein it was initially notified in the first notification number 17/2021 dated 18th November 2021, जिसके अंदर mention किया गया था कि the notification will come into force from first day of January 2022, which probably primarily as Gaurav bhai has said, जो Zomato Swiggy वाले restaurants हैं, जिनके ऊपर वो liabilities pay करने के लिए आती हैं. जबकि ये decide किया गया था on 24th of June 2017, सबसे पहले वहां पे notify किया गया था इसको, which was further amended on the 23rd notification of 2017, which was dated 22nd August 2017. And finally it was notified on 17/2021, जो मैंने आपको बताया है, जो 18th November 2021 notify की गई थी, उसको implementation कर दिया गया था, right? So I think this was the only thing which has been properly notified and clarified. Rest जो we have been making on a little lighter note on the public domain, कि वो lollipop दे दी गई है, वो lollipop ही है और अभी तक दिया नहीं गया. It has not been notified. It has not been channelized how it would work. And I'm sure if it is worked well, let's talk a little positive also. Instead of criticizing the government is very easy, but I really feel if this can be channelized well, तो आप सोचिए 16 lakh sellers which are currently in the composition and more to come, right? Or maybe expecting, agar suppose ये next year तक आता है, might be sitting on 20 lakhs of composition dealers who will be able to channelize their sales through e-commerce mode, which is again going to enhance tax collections, revenue collections, and also the ambit of this e-commerce industry in India. So we can have much more rapid growth, right? So, but let's see times to come कि क्या चीज notify होती है और कैसे channelize होती है. That is very, very important. The government has to come not only with notification, they should also come with notifications with either some examples or FAQs simultaneously when they officially notify this process. So with this, I rest my opinion on e-commerce. Anything further, if you want me to add, we can do that. Gaurav bhai, all to you now. No, I have nothing to add. Thank you. ठीक है गौरव जी, बोलिए. अच्छा, thank you डॉक्टर राहुल कक्कड़ जी. आपने अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर बिल्कुल सब कुछ बताया कि कैसे लॉ या प्रोसीजर्स में क्या क्या चेंजेस आई हैं रिलेटेड टू ई-कॉमर्स ऑपरेटर एज वेल एज सप्लायर्स टू दी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स. काफी चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं. अभी हम इसको 1 to 1 देखते रहेंगे. और जैसे कि हम देख रहे हैं, चेंजेस ना सिर्फ लॉ में बल्कि कुछ कंप्यूटेशंस में भी चेंजेस किए गए हैं. अभी जैसे कि हम देख रहे हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जब हम रिफंड लेते हैं तो हमें उसके ऊपर इनपुट सर्विसेज का अभी तक क्रेडिट नहीं मिलता था. अब प्रपोजल में आ चुकी है 47 जीएसटी काउंसिल में, उसका इनपुट सर्विसेज का भी इनपुट मिलेगा. क्योंकि वो सर्विस का इनपुट मिलेगा तो कंप्यूटेशन का जो मेथड ऑलरेडी जीवन हमें जो लॉ में दिया गया वो चेंजेस भी होगा. तो हम जितने भी चेंजेस इन रिलेशन टू कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड्स, इस पर हमें आज की चर्चा में रहेंगे हमारे साथ सीए शुभम खेतान जी. Now over to Shubham ji for deliberation on changes in computation of refunds. Thank you so much, Suresh ji, and once again, thank you so much to Star and all the co-speakers and dignitaries here. I think ये काफी interesting subject मुझे दिया गया है क्योंकि इस particular aspect को लेकर कुछ धारणाएं हैं GST refund और inverted duty structure पे, जो I think थोड़ा clarification required है, because
सबको ये काउंसिल मीटिंग का प्रेस रिलीज पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हमें इनपुट के साथ साथ इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड मिलेगा, बट इसका कैलकुलेशन काफी डिफरेंट है जो हम सोच रखे हैं उससे। एक बार मैं अपनी ना स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहता हूँ, एक बार मैं खाली कैलकुलेशन को दिखा पाऊँ, बस मेरी स्लाइड दिख रही है इसमें? यस, विजिबल। करना ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं डीकेसी फुटस्टेप बोलकर गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें असेसी ने अपील किया था, अपीलेंट ने ये अपील किया था फॉर द ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट कि हमें नेट आईटीसी जो है विद रिगार्ड टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, उसमें ना कि इनपुट, ना कि ओनली इनपुट बल्कि इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड दिया जाए। तो ये डेफिनेशन है इनपुट टैक्स सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑफ इनपुट, इसको एनहांस करके इनपुट सर्विसेज को भी कवर किया जाए। इसको लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसके वजह से भी आपका इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड बनता है। सिंस दिस अमाउंट इज ऑन अकाउंट ऑफ rate of tax on input being higher than the rate of tax on output, and this accumulation is occurring not only because of input but also on account of input services, इसका रिफंड नहीं मिला। Thereafter the matter travelled to the Honorable Supreme Court. Supreme Court reversed the decision of the Honorable Gujarat High Court and it held कि नहीं, net ITC on input price is refund मिलना चाहिए। Input services is not a cause for is not a cause which is directly relating to accumulation of ITC on account of increase on account of higher tax rate on inputs than output. It is input services का amount should not be a reason for getting this amount of refund. This is what the Honorable Supreme Court had held. Last में उन्होंने ये भी बोला कि we agree कि इस net ITC के definition में इनपुट आना चाहिए, इनपुट सर्विसेज नहीं आना चाहिए। We agree to this. As per the act, you are right, but we want you to have a relook at the formula, क्योंकि इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम इस एरिया में नहीं है, प्रॉब्लम अपना है लेस होने के बाद जो टैक्स पेबल वाला पार्ट बताया गया है उस जगह पे प्रॉब्लम इज नॉट ऑन नेट आईटीसी। नेट आईटीसी शुड बी ऑन इनपुट, but the problem is this tax payable on inverted duty rate of inverted rated supply of goods and services. The problem lies here. Why? Because यहाँ पे तो on the first part you have made the turnover proportionate, as in inverted duty turnover divided by total turnover into ITC. This is already being made proportionate, but the amount of tax payable that you are reducing on inverted duty structure, this is in essence assuming कि पूरा का पूरा टैक्स पेड जो हुआ है इन्वर्टेड ड्यूटी टर्नओवर पे पूरा का पूरा इनपुट से हुआ। क्यों? आप मानो कि इन्वर्टेड ड्यूटी टर्नओवर 5% वाला है मेरा, एडजस्टेड टोटल में 5, 12, 18 सब कुछ, तो मेरा मानो कि आप न्यूमरेटर में 60% हुआ मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी, तो 60% ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी ऑन इनपुट, ये मेरा रिफंड आना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोल दिया कि आपको टैक्स पेबल और इन्वर्टेड ड्यूटी को भी लेस करना है। इससे इशू क्या हो रहा था, ये प्राइमा फेसी अज्यूम कर लिया जा रहा है कि टैक्स पेबल और इन्वर्टेड ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ कंप्लीटली ऑन इनपुट, मतलब सिंस मेरे इनपुट का प्रोपोर्शनेट हुआ और टैक्स पे जितना मुझे इन्वर्टेड ड्यूटी पे किया गया वो लेस हो जा रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा टैक्स पेमेंट जो इन्वर्टेड ड्यूटी से हुआ है from my electronic credit ledger is on the basis of the assumption कि इनपुट से ही हो रहा है पेमेंट, which is wrong. पेमेंट सिर्फ इनपुट से नहीं हो रहा, पेमेंट इज फ्रॉम अ क्रेडिट लेजर एज अ होल। अगर मैं 5% का भी पेमेंट कर रहा हूँ टैक्स का on my inverted rated turnover, that includes not only the credit ledger which I am utilizing on account of input, but also on account of input services. That's why this formula should not be only on account of input, but this should be proportionate. So अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे बोला न्यूमरेटर में आएगा आईटीसी ऑन इनपुट, डिनोमिनेटर में आएगा आईटीसी ऑन इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज। तो यहाँ वाले फॉर्मूला में इन्होंने इनपुट और इनपुट सर्विसेज को ऐड कर दिया, इससे हमारा रिफंड तो बढ़ेगा। इट विल नॉट बी द सेम प्रोपोर्शन अगर यहाँ पे ऐड होता जितना पड़ता, बट इससे हमारा इनपुट डेफिनेटली बढ़ेगा, बिकॉज जो रिडक्शन वाला कॉम्पोनेंट है टैक्स पेबल और इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, वो हमारा रिड्यूस हो जा रहा है। तो जो अमाउंट यहाँ रिड्यूस हो जा रहा है, जो लेस होने वाला कॉम्पोनेंट है, इससे ऑटोमेटिकली हमारा
refund बढ़ेगा, but please don't make this mistake of including input services under your net ITC here, which is the first part of the formula. Only on the second part of the formula, your tax payable on inverted rated turnover would get proportionate in terms of net ITC on input and not net ITC on inputs only. The tax payable would be proportionate and not on the entire value of tax payable on inverted rated. So this is the clarification. ये inverted rated को लेकर आया है. सर मुझे ये एक दो क्लैरिफिकेशन और आए हैं with regard to export or export without payment of tax or export with payment of tax. Since इससे भी computation affect हो रहा है, ये भी मैं briefly cover कर लेता हूँ. Export without payment of tax में हमें पता है formula है export turnover divided by total turnover into net ITC on input and input services. ये हमारा export को लेकर formula है for refund. Now, what will be the value of export is the major question that we need to understand. Now, इसको लेकर एक circular आया था कि value of exported goods क्या होगा, but वो circular कभी भी law में नहीं था. It was obviously challenge कि आप वो circular valuation कैसे prescribe कर सकते हो कि export value of export क्या होना चाहिए. Now they have inserted an explanation in the law. इन्होंने क्या बोला कि दो values आपको निकालने होंगे. FOB value declared in the shipping bill and the value which is declared in the tax invoice, whichever is less. इसका मतलब आपने जो shipping bill में आपका FOB value declare किया गया है for value of export, free on board value without insurance claim, या फिर आपने जो tax invoice में declare किया, दोनों में से जो भी lower होगा अपने को वो value numerator में भी लेना होगा और adjusted total turnover में denominator में भी लेना होगा, right? So it is the lower of these two values. Though ये already circular में था, this was never part of the rule, so now this has been provided in the rule. Now, refund under export with payment of tax. Interestingly, ये refund ये provision follow होके आज तक grant हो रहा था, but this was never once again in the rules. आपको पता है जब आप export with payment of tax करते हो, your values as per data furnished in your GSTR1 should match with the values as per shipping bill. It may be invoice number, invoice date, any kind of mistake, even a small mistake which is there in the static data in your GSTR1, that may result in a denial of your refund, right? So, फिर हमें क्या करना पड़ता है? If there is any mismatch, we have to verify those mismatches from the IceGate portal and see what are those mismatches. Once we find out those mismatches, we have to rectify it in the next period GSTR1. Now the law was saying as soon as you furnish your GSTR1 and you furnish your shipping bill, it would be deemed as if your refund application has been filed for export with payment. So what they have done is essentially they have rectified this statement. They have stated that if any amount is, if there is any mismatch between your shipping bill and the GSTR1, shipping bill और GSTR1 के बीच में mismatch है, तो जिस दिन आप इस mismatch को correct करते हो, that will be the date when your refund will be said to be granted. मतलब जिस दिन आपका mismatch correct हो गया, ना कि the date when you're originally filing your GSTR1. So basically आपका shipping bill और GSTR1 जिस दिन match होगा, उस दिन आपका refund application file बना जाएगा, उस दिन आपको refund मिलेगा. यही सारे amendments थे. Please let me know if I've missed out on any amendments which are related to refund which I had to say. शुभम जी, अभी सुरेश सर ने, सॉरी सुरेश सर, आपकी बात को बीच में से काट रहा हूँ, इफ यू अलाउ. सर आपका म्यूट पे है माइक. हाँ मैं कर दी जी. शुभम जी, मेरे ना कान खड़े हो गए थे जैसे ही सुरेश सर ने बोला कि रिफंड में कुछ चेंजेस आए हैं. पहले इनपुट सर्विसेज का रिफंड नहीं मिलता था, अब मिलेगा. तो मुझे अभी भी ये जानना है, क्या इनपुट सर्विसेज का रिफंड मिलेगा? इनपुट सर्विसेज का रिफंड नहीं मिलेगा. सुरेश सर ने बोला था, थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज करना चाहूंगा खाली. इनपुट सर्विसेज का रिफंड नहीं मिलेगा, आपका रिफंड अमाउंट जरूर बढ़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला को लॉजिकल किया गया है. बिकॉज टैक्स पेबल जो था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इलेक्ट्रॉनिक रेट लेजर इज नथिंग बट अ बकेट ऑफ वाटर. आप इसमें जब पानी डालते हो तो इसमें इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड सब कुछ मिक्स हो जाता है. तब आप जब टैक्स पेमेंट करते हो तो आप सिर्फ इनपुट से पेमेंट नहीं करते. जो फॉर्मूला का एक एसेंशियल अजम्पशन था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनपुट से पेमेंट कर रहे हैं,
तो उसको इनपुट सर्विसेज किया गया है। तो इन माय हम्बल व्यू कैपिटल गुड्स भी सोचा जा सकता था, वी डोंट नो हाउ, बट कैपिटल गुड्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट मे हैव बीन थॉट ऑफ एज वेल, क्योंकि हम टू अ सर्टेन एक्सटेंट कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी यूज करते हैं फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। कैपिटल गुड्स को एक चैलेंज ये आ जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है, बिकॉज कैपिटल गुड्स वो भी टेकन इन द सेम मंथ, बट यूटिलाइजेशन in terms of the benefit that they derive, or if it is distributed over a period of time. Maybe that has been a challenge, that's why they have not included it, but that is something that they would have thought of itself. Yeah. Because I was seeing an opportunity, क्योंकि e-commerce is the biggest industry which is crying for this, non-issuance of refund on the input services. अगर वो अलाउ हो जाता तो आज मैं दिवाली बनाने को तैयार हूँ। आई वुड हैव बिल्ड ऑल दी क्लाइंट्स विद द लीगल ओपिनियन कि अब रिफंड मिलने वाला है, बट आई नो दैट इज व्हाई सुरेश सर जैसे आपने बोला ना, इट केम टू माय हेड कि चलो भैया आज जो है काम शुरू करें। Thank you Rahul ji and Shubham ji for clarifying the subject matter, though it was my wrong impression, but ठीक है, clarify हो गया तो very good। और शुभम जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ना सिर्फ चेंजेस इन कंप्यूटेशन बताया, बल्कि पूरी हिस्ट्री भी बताई कि ऐसा क्यों करना पड़ा और क्या कारण है और कैसे इसको आगे करना है, ये भी इन्होंने समझाया। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच शुभम खेतान जी फॉर योर नाइस डेलिब्रेशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर। I would just now add one more thing. The definition of refund itself in section 54 does not allow us the refund of capital goods. Correct. तो वो सबसे बड़ा hurdle है, the definition itself. So rules will only follow when the definition in section 54 would change. Now, without taking much time, we come to the last leg of today's discussion. I understand there can be some points which are left. हम उसको again we will take up in the next query session for star, which will happen very soon. Meanwhile, I'll request Suresh ji to take the last limb of the today's deliberation. जो benefits, जो changes, जो proposals exporters के relation में आए हैं, Suresh ji, we would request that you please take up that topic and we conclude the meeting. Thank you Gaurav ji for giving me this opportunity. देखिए, एक जो नोटिफिकेशन नंबर 13 आया है 5 जुलाई को, उसमें बात की गई है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हम इस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करेंगे 15 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2020 का, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑलरेडी ऑर्डर पास किया था 8 मार्च 2021 को। उसके बाद ये पॉइंट उठाता है कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से पीरियड को माफ किया जा रहा है लिमिटेशन से, इट इज ओनली फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग, नॉट फॉर कंप्लायंसेस। इस तरह की धारणा बन गई थी मार्केट में भी, और जितने भी ऑफिसर्स थे वो कंप्लायंसेस प्रोसेस के लिए इसको मानने को तैयार नहीं थे। जब कोर्ट में ये पॉइंट गए तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी और मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस बात के ऊपर स्पेसिफिकली डायरेक्शन दी कि ये जो रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की पोजीशन आती है ये भी कवर होगी। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें ये पेंडेमिक के 2 साल को एक्सक्लूड किया गया था फॉर कंप्यूटेशन फॉर द लिमिटेशन पीरियड, ऐसा ही बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट ने भी माना था और उनको रिफंड्स मिले भी थे। लेकिन एक सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 157 2021 का 20 जुलाई 21 का, जिसमें ये बोला गया था कि इसके अंदर जो एक्सटेंशन ऑफ पीरियड है वो सिर्फ हर चीज के लिए नहीं होगा, कंप्लायंसेस के लिए नहीं होगा, जिसकी वजह से ये इशू बना हुआ था। अब जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर भी इस बात को मान लिया गया है कि जो भी ये एक्सक्लूशन पीरियड है पेंडेमिक सिचुएशंस का 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2020 के लिए ये रिफंड एप्लीकेशन के लिए जो जीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन हम RFD 01 में लगाते हैं वहां भी एक्सक्लूड किया जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन नंबर 13। तो अब जो भी हम रिफंड एप्लीकेशन 2 साल की रेलेवेंट डेट्स के अंदर फाइल करते थे, प्रैक्टिकली वो 4 साल मिलते हैं। अगर मैं इस तरीके से चलूं तो अगर मैं आज बात कर रहा हूं आपसे 6 जुलाई 2022 को, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जुलाई 18 के बाद तक कोई भी पीरियड हो तो वो मेरा कवर होगा।
इससे पहले क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी और काफी अफसर इसको टाइम बार मानते हुए हमें रिफंड प्रोसेसिंग के लिए लिमिटेशन के बाहर कर रहे थे और हमारी RFD 01 को रिजेक्ट कर रहे थे इस पॉइंट के ऊपर। नोटिफिकेशन नंबर 13। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 14 में भी कुछ बात कही गई है। पहली बात यही कही गई है कि जब भी एक हमारे पास रूल 42 है जो बात करता है कि अगर हम कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं तो हमारे को प्रोपोर्शनेट ITC रिवर्सल करना पड़ता है रूल 42 में। लेकिन इस पॉइंट पर ये क्लैरिफाई किया गया नोटिफिकेशन नंबर 14 के अंदर कि ड्यूटी क्रेडिट स्प्लिट हालांकि एग्जेम्प्ट है, लेकिन फॉर कैलकुलेशन और कैलकुलेटिंग द ITC रिवर्सल अंडर रूल 43 हमें इस एग्जेम्प्ट सप्लाई को भी इग्नोर करना है और हमारे को इसको कंसिडर नहीं करना है, इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई से कम नहीं करना है। इसके अलावा एक पॉइंट ये आ रहा था कि जो हमें ITC का हम रिफंड लेते हैं ऑन अकाउंट ऑफ IGST पेड जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर, कई बार किसी भी कारण से वो हमारा अगर एरोनियस होता था तो डिपार्टमेंट हमारे ऊपर क्रिएट कर देता था, डिमांड क्रिएट कर देता था टैक्स की, इंटरेस्ट की और पेनल्टी। क्योंकि हम टैक्स डिमांड और इंटरेस्ट की पेनल्टी जो एरोनियस रिफंड्स हमें मिल चुके थे उसको हमें डिमांड में कन्वर्ट हो जाता था तो हम उसकी पेमेंट कर देते थे। जब हमने पेमेंट कर दी तो पॉइंट ये उठा था कि जो हमने रिफंड मांगा वो हमारा रिजेक्ट हो गया और हमने जमा करा दिया तो डिमांड खत्म हो गई। लेकिन जब हम अप्लाई करते थे रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 लगाते थे तो हमारे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से टू दी एक्सटेंट ऑफ रिफंड क्लेम अमाउंट हमारा कम हो जाता था, डेबिट हो जाता था। तो हमारा एक तो पहले रिफंड क्लेम कम हो जाता था हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, सेकेंडली हमने उसको जमा करा दिया। क्योंकि हमने जमा करा दिया तो हमारी तरफ से 2 बार पेमेंट हो जाती थी। फर्स्ट टाइम जब हम RFD 01 अप्लाई करते थे और सेकंड टाइम जब हम उसको जमा कराते थे अलोंग विद टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी व्हाइल डिमांड क्रिएटेड बाय द डिपार्टमेंट। इस चीज को सॉल्व करने के लिए अब एक नया PMT 03A आ गया है, डिपार्टमेंट ने इसको फॉर्मुलाइज किया है। अब इसके थ्रू हमें जो ऑलरेडी हमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से क्रेडिट कटा था टुवर्ड्स रिफंड्स वो रीबैक आ जाएगा, रिक्रेडिट हमारे खाते में हो जाएगा थ्रू दिस PMT 03A। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इसके लिए भी पहले जो एक फॉर्म होता था उसको हटा दिया और अब ये अनयूटिलाइज्ड ITC ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी अब हमें अलाउ कर दिया गया है और ये अब हमें रिफंड मिलेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं वहां से जब कोई भी आउटगोइंग टूरिस्ट बाहर जाता है तो उसके लिए पहले प्रोविजन ये था कि ड्यूटी फ्री शॉप को बोला गया था कि आप इस तरह की सेल को एक रिफंड क्लेम करना चाहते हो क्योंकि आप इसको एक्सपोर्ट मानते हो तो RFD 10B के थ्रू एक एप्लीकेशन लगती थी जिसके थ्रू वो रिफंड माना जाता था। लेकिन प्रेजेंट नोटिफिकेशन के अंदर ये बता दिया गया कि वो फॉर्म 10B को खत्म कर दिया और ये बता दिया गया कि जो ड्यूटी फ्री शॉप से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आउटगोइंग टूरिस्ट जा रहा है उस सेल को ही हम एक्सपोर्ट सेल मानेंगे और चूंकि वो एक्सपोर्ट सेल होगी तो इसलिए अब RFD 01 के रूट से ही उसका रिफंड नॉर्मल वे में मिल जाएगा। फॉर्म 10 GST RFD 10B लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह की इसमें अमेंडमेंट की गई है। इसके अलावा एक चेंजेस और आया है एक्सपोर्टर के लिए कि एक सर्कुलर नंबर 16/2019 आया था कस्टम का 17 जून 2019 को, जिसमें उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था कि काफी सारे एक्सपोर्टर्स को एक रिस्की एक्सपोर्टर्स की डेफिनेशन में डाल दिया गया था कि जिनके कोई भी कारण थे उनको रिस्की एक्सपोर्टर की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई थी डिपार्टमेंट के पास और उन सभी रिस्की एक्सपोर्टर्स को रिफंड लेना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि वो वेरिफिकेशन करना बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग थी और उन लोगों को रिफंड नहीं मिल पा रहे थे और काफी सालों से वो अटके हुए थे। अब गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन का थ्रू ये क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसे जितने भी रिस्की एक्सपोर्टर्स थे जिसकी वो प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं भी कर पा रहे हैं वो सारे के सारे रिस्की एक्सपोर्टर की मैकेनिज्म से हटा करके नॉर्मल ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर की लॉगिन में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
जब वो नॉर्मल ऑफिसर्स के पास, जुडिशियल ऑफिसर के पास एप्लीकेशन आ जाएंगी फ्रॉम दी सिस्टम आउट ऑफ दिस रिस्की एक्सपोर्टर्स जो ब्लॉक किए गए थे, तो उसके बाद ऑफिसर्स अपनी नॉर्मल प्रोसीडिंग करके और आगे बढ़ सकते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करके उनको जीएसटी का रिफंड जो उनको मिलना चाहिए वो उनको दे सकते हैं। इस तरीके से ये जो रिस्की एक्सपोर्टर्स के रिफंड स्टकअप थे, इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने सारी रिस्की एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स को डालने की बात करी है कि हम नॉर्मल जुडिशियल अथॉरिटी को दे देंगे फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। दिस वर द सर्टेन चेंजेस रिलेटेड टू एक्सपोर्टर्स इन दिस नोटिफिकेशन नंबर 14। थैंक यू गौरव जी। आज के स्पीकर्स ने जो भी इनको डेलिब्रेटेड आइटम दिए गए थे उन्होंने बहुत अच्छे से डेलिब्रेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर्स का, और सभी जितने भी हमारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े और हमारा सहयोग दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कल ही मीटिंग सोचा था और आज करीब बहुत शॉर्ट पीरियड में हमने मीटिंग करी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे हमें मिलता रहेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अविनाश जी और भाटिया सर को पूरा और अच्छे से नहीं सुन पाए। नेक्स्ट टाइम आई थिंक all the members are wanting to hear both of them, so we are waiting. The next time they will take out more time and they will be also present with us. Thank you to all. Thank you, everybody.